want to know about this room. So, can you just elaborate? Is it an हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो आप ये मिरिक के जगह के बारे में ज़रूर देख लीजिए। तो अभी हम लोग मिरिक मार्केट पे उतर गए, वहाँ से हम लोगों ने ये वैन जैसा है तो इसको हम लोगों ने बुक कर लिया और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं खुशी फार्म हाउस। तो खुशी फार्म हाउस पे वहाँ पे मैं दिखा दूँगी जाके कि रूम का क्या है, लिखा है नहीं है। हाँ, मिरिक मार्केट एरिया से खुशी फार्म हाउस तक टाइम लगेंगे ½ एन आवर ऐसा कुछ, तो वही है। तो चलिए आगे जाके देखते। जैसे कि खुशी फार्म हाउस पे हम लोगों का रूम बुकड है, तो हम लोगों ने ऑल द वे सिलीगुड़ी से शेयर गाड़ी में आके मिरिक मार्केट तक आके वहाँ से जो वैन हम लोगों ने बुक किया, वैन का चार्जेस थे 900 रुपीज़ और यहाँ हम लोग पहुँच गए मिरिक से, मतलब दार्जिलिंग के जो मिरिक है, मिरिक से थोड़ा आगे जाके ताबाकोशी होता है। ताबाकोशी को छोड़ के आपको एक जगह मिलता है, वो है पोखरिया बॉम। बहुत लोग इस जगह को ताबाकोशी नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये पोखरिया बॉम है, जहाँ एक तरफ है सांगमा टी गार्डन और एक तरफ है गोपालधारा टी गार्डन। उसके अलावा फार्म हाउस पे एंट्री करते ही आपको स्वागत करते हैं कुछ फार्म के एनिमल्स। हाय, सो दिस इज़ आवर रूम। दिखा देती हूँ, इसमें 2 बेड है और ये कुछ बैम्बो वाला चेयर है। इट्स ग्रेट, इज़न्ट इट? साफ सुथरा है, ठीक है। इसके अलावा बैल्कोनी में इस तरीके से डेकोरेशन किया गया है और हमारे रूम के बाहर एक डाइनिंग हॉल है और हॉल को कुछ चीज़ों से ना डेकोरेट किया गया है। तो इसके बारे में क्यों ना हम ओनर से ही बात कर ले कि इस हॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। बात करेंगे खुशी फार्म के जो ओनर है उनके साथ। सो हाय, हेलो। सो हियर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस रूम. So, can you just elaborate? Is it an antique? Because most of the things here are just looking like an antique piece. Yes. So, is it an antique? If it is not, then how much its age? This is very old. This is an antique only. This came all the way from Hong Kong. Hello, sir. Because one of my uncles used to work in the British Army, so he brought it all the way from Hong Kong. It's a National Panasonic. Okay. Original record player. Record player, come radio. At the moment, it doesn't work. Okay, that's really nice. And also, I just show you the fireplace. It's like your husband's ideas, right? Yes, yes. Yes, and I want to show you this. Okay. I think this iron which we used when there's no electricity. Okay. This is iron. You put it on usually on stove or you iron your clothes. Wow. How many years of this? Must be 100 years old. 100 years Yes. old. And here I just want to show you this side also. This is We saw sometimes this kind of things, and this also, right? This is for water, and this Okay. is to store seeds. Yeah. You keep your seeds in there. Okay. Like today is Buddha Purnima, so you plant your seeds. Oh, So yeah. for that you keep your seeds here. So we have different rocky pieces too. For that purpose, yes. like plantation Yes. and all. And these are used for puja. This one. This Okay. is smaller god. It is used for pujas. Pujas, By the okay. Nepali community Rai. Yeah. We use this. Okay. This is also some family of god only, like bottle god. This is Okay. bottle god. So this is all some god. And I just want to show that wall. Is it just you No, bought no, it the- or? No, these birds are available here. Okay. And all these birds are here. So In you fact, just clicked it no, and no, make it friend. one of our guests, he clicked and Okay. he sent me by email. Email. He's a birding person, so he did this. Oh wow. This is a rare bird. See only in the hills, the pheasant. Alit. Okay. So here the name also written over Yes, on it. with the local the But original name and the local name is there. local name Like for is this also is there. Kalij pheasant, no Kalij. Yeah. Spangled drongo is called chibe. So it's Okay. खुशी फार्म्स के बारे में एक चीज़ है जो कि बहुत यूनिक लगती है और बहुत ही खूबसूरत है, और वो ये है कि एक तरफ है पानी, तरफ है ये चाय के बागान। ऊपर मतलब हर जगह ऊपर भी है और इस तरफ भी है। तो फार्म से निकलते ही ये रोंगबोंग नदी आपको अट्रैक्ट जरूर करते हैं। उसके अलावा आप खुशी इस फार्म में क्या कर सकते हो, आप चाहो तो योगा कर सकते हो और
और आप खुद ही देख लीजिए। अब यहाँ पे आप जो बुक सेल्फ देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कुछ गेम्स रखे गए हैं, साथ में बुक्स भी। आप चाहो तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हो और साथ में गेम्स भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। उसके अलावा ये स्विमिंग पूल के लिए कॉस्ट्यूम भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। उसके साथ आप इस रोंगबोंग नदी में जाके आप नहा भी सकते हो। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग ऊपर की तरफ चले गए और जाते वक्त हम लोगों ने देखा कि खुशीज फार्म हाउस के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टेज थे। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी में गए जो कि उस फार्म हाउस के ही है। ये प्रॉपर्टी ये भी बिजनेस पर्पस है, लेकिन यहाँ पे क्या चार्जेस है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक क्विक व्यू मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग फार्म हाउस में जाके हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग एक पार्क पे गए। पार्क का नाम है तामाकोशी पार्क और ये पार्क के अंदर नॉर्मली पिकनिक ही हो रहे थे और बहुत लोग वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे। आज है डे 2 और हम लोग आज भी पोखरिया बोंग में ही है और अभी हम लोग लंच करके निकला है पार्क पे। और पार्क बेसिकली ये जो पार्क है तामाकोशी पार्क है और ये पूरा मतलब हम लोगों का जो खुशीज फार्म होम स्टे है ना वो हम लोगों का है पोखरिया बोंग में। तो वहाँ से थोड़ा नीचे आके ये पार्क मिलते हैं। पार्क में एंट्री फ़ी है 10 रुपये एक जन का। तामाकोशी क्यों है इस जगह का नाम, मतलब हो सकता है यहाँ पे पानी का जो रंग है वो ताम जैसा कलर होता है, तो हो सकता है उसी वजह से यहाँ पे जो नाम पड़ा है तामाकोशी। बस इतना ही। बच्चे हमेशा बड़ों को ही इमिटेट करते हैं ना, उसी तरह मेरा बेटा भी मुझे इमिटेट कर रहा था। तो उस समय मुझे इतना क्यूट लगा ये सीन, तो इसीलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो अब आते हैं खुशीज फार्म हाउस में क्या क्या फूड मिले थे हम लोगों को। ये हम लोग जिस दिन पहुँचे उस दिन मीट, हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, 2 सब्जी, दाल और राइस हम लोगों को मिले। इसके अलावा आप अगर दूसरा भी कुछ खाना चाहो तो आप उनको बोल सकते हो। वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपको आपका डिमांड वाला खाना ही आपको देने के लिए। और खाने में जो क्वालिटी है वो अच्छा था और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा और हाइजीन में भी बहुत अच्छा था। इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। टेस्ट की बात मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि टेस्ट सबके अलग होते हैं। और खुशीज फार्म हाउस पे अभी आते हैं कि चार्जेस कितने पड़े थे हम लोगों को। पर हेड का जो चार्जेस है 1500 फूडिंग और लॉजिंग दोनों को मिला के। तो सारा दिन का खाना और रहने का, और बाथरूम में गर्म पानी के लिए गीज़र नहीं है लेकिन बकेट वाटर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों का कोई चार्जेस नहीं है अगर वो 6 साल के नीचे है तो। 6 साल के ऊपर अगर होते हैं तो उसको हाफ देने होते हैं। तो थर्ड डे हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके सिलीगुड़ी के लिए निकल गए और फार्म से निकलते ही हम लोगों को शेयर गाड़ी भी मिल गए थे सिलीगुड़ी तक, और जिस पे चार्जेस एक जन का 250 रुपीज़ पड़े थे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।